and time also. So we'll be slightly, yeah. So let's do this. Okay. So in the last class, we are done with my bony fish and my chondrichthyes. So मेरे cartilaginous fish और bony fish की story हम यहाँ पे देख चुके हैं, समझ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं. So now we can start with my amphibians. So amphibians की जब हमने बात किया था कल, so we're discussing कि यहाँ पे आपके 3 ग्रुप आते हैं basically amphibians के अंदर. You have a frogs, you have Sicilians and you have a salamander. ये 3 ग्रुप्स आपको मिल जाता है आपके amphibians के अंदर. These are the 3 groups you will get to see within the amphibians. So ये हमने 3 ग्रुप्स की यहाँ पे हमने बात की थी. Now what you have to discuss here is कि 3 ग्रुप्स तो हम पढ़ेंगे, like we know that these are the 3 examples you'll find in them. Let's start with the common traits. हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं कि आपके amphibians के general common traits आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे. So let's have a look at the amphibians. What are their common traits? First of all, you have to know they are my cold-blooded animals. Now, when we say they are my cold-blooded animals, याद रखना इसका मतलब यहाँ पे ये होता है they cannot regulate their body temperature. एक एम्फीबियन अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता. So, फॉर एग्जांपल उसके आसपास का एनवायरनमेंट अगर ठंडा होगा तो वो इट विल हैव अ कोल्ड टेम्परेचर. अगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट अगर वार्म होगा तो इट विल हैव अ वार्म टेम्परेचर. So when I say these are my cold-blooded animals, then you should know very clearly that means they cannot regulate their body temperature. They cannot regulate their body temperature. ठीक है. The body is divided into 2 parts. Body will have 2 parts. You'll have a head and a trunk. Body is generally divided into 2 parts. You have a head and a trunk. तो 2 पार्ट में आप बॉडी को डिवाइड करते हो, हेड और ट्रंक के अंदर यहाँ पे. When you talk about the amphibians, now they are the one which will have a dual life. So you will have a larval stage, especially अगर मैं frog की बात करता हूँ. If I talk at I take it as an example of frog, so frog is going to have a very well defined metamorphism. So metamorphism is something shown by them. It is something shown by this particular group. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको लेगा आपका होते हुए, that is going to be a frog. Metamorphism is shown by this particular group. आप याद रख सकते हो, even Sicilian will have a metamorphism happening in them, but सबसे well defined metamorphism जो आपका हो रहा होता है, that will be seen in the frog. We have a larval stage will convert into the adult form. Now, when you talk about the frog और उसके metamorphism की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, so you know that within this only you will have a larval stage. Now, larval stage की जब मैं बात करता हूँ, so larval stage will be having a name and that name is your tadpole. So tadpole will be the larva over here, and this tadpole will later convert into my adult frog. So this will now turn into your adult frog. अब जब मेरा यहाँ पे tadpole frog में कन्वर्ट हो रहा है तो काफी ज्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे होते हुए दिख जाएंगे. You will find number of changes will be happening from the tadpole to frog. तो उन चेंजेस को हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं. What are the changes which have been happening in this particular group? But इसके पहले let's understand some few more traits in this. Like this is a much more advanced group, so you can clearly understand few things. Like they will have a 3-chambered heart. So we'll be having 3-chambered heart. So basically, you'll have 2 auricles. You have 2 auricle and 1 ventricle. So you'll be finding 2 auricle and 1 ventricle is seen in this heart. So ये रखना that they will have a 3-chambered heart, 2 auricle और 1 ventricle आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. This is what we'll be finding in them. When we talk about their respiration, तो respiration के लिए इनके कई सारे तरीके होते हैं. So for respiration, they will be having something like your gills. Gills आपको सिर्फ मिलते हैं larval stage के अंदर. Like tadpole will have the gills. Gills, you can have your lungs, which are seen in the adult form. There's something called as my skin, which can be used for exhalation of gases. And you have a buccopharyngeal respiration. Buccopharyngeal respiration.
बकोफेरेंजियल रेस्ट्रिक्शन आपका क्या होता है, दैट बकल कैविटी के अंदर से भी लाइक वो अपना ब्रीदिंग कर सकता है. सो विद इन द यूजिंग द बकल कैविटी इट कैन एक्चुअली टेक अप द एयर एंड रिलीज द CO2. सो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन. तो बकोफेरेंजियल तरीका है आपका यहाँ पे जिसके अंदर बकल कैविटी के थ्रू अपना वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है फ्रॉग. स्किन आपका हो गया, लंग्स हो गया, गिल्स हो गए. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द वेज थ्रू इट दे कैन रिस्पायर. गिल्स आपको सिर्फ मिलते हैं लार्वल स्टेज में. तो गिल्स आर समथिंग विल ओनली फाइंड इन द टैडपोल स्टेज के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. यू डोंट फाइंड देम इन द एडल्ट्स. एडल्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलता है. अब अगर आपने कभी किसी भी फ्रॉग को पकड़ा है, सो दे विल हैव नो स्केल्स. सो दे हैव नो स्केल्स ऑन बॉडी. तो बॉडी के ऊपर आपको कोई भी आपको स्केल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं. दैट इज नॉट समथिंग विल बी फाइंडिंग इन देम, राइट. Along with that, you will have two pairs of limbs are observed. So you'll have a two pairs of limbs. Pairs of limbs आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, दो आगे दो पीछे आपके दो पैर आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको यहाँ पे लिम्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. एंड अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो फ्रॉग का जो फोरलिम होता है, फ्रॉग का जो फोरलिम होगा, फ्रॉग के फोरलिम के अंदर you will have a presence of a copulatory pad. You will have presence of a copulatory pad. So copulatory pad आपके यहाँ पे क्या होता है ना, you have this pad in the forelimb के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपके one of the digits will have the copulatory pad. इसकी मदद से फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रख पाता है. So forelimb के अंदर you will have a presence of a copulatory pad. This is a pad which will actually be used by the male frog to hold on to a female. So now this is something I will find in the male frog. ये copulatory pad जो आपको मिलता है specifically, you will find in the male frog. So you seen in your male frog. बाकी you will have excretion के लिए you will have the kidneys. So kidneys are well developed. You can see the kidneys in them. Excretion यहाँ पे आपको हो रहा है via kidneys. So excretion आपका यहाँ पे होगा via kidney. अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब मेरा यहाँ पे एक टैडपोल फ्रॉग में बन रहा होता है, टैडपोल विल एक्सक्रीट आउट द अमोनिया. टैडपोल विल एक्सक्रीट आउट द अमोनिया. बट जो आपको जो एडल्ट एनिमल आपके यहाँ पे होगा, एडल्ट फ्रॉग हो गया, सेलेमेंडर हो गया, सिसलिन हो गया, दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट योर यूरिक एसिड. ये अपने यहाँ पे अपना एक्सक्रीट करेंगे आपका यूरिक एसिड. चार इतना योर फ्रॉग, टैडपोल एंड दे आर गोइंग टू बी एक्सक्रीटिंग द यूरिक एसिड ओवर हियर. Sorry, it is going to be urea. So urea will be from adult frog, and your tadpole will be having the ammonia will get released from that to the side. So it will be urea. And frog. And when I say frog, it is my adult frog. I can say all the adult amphibians are going to excrete out the urea over here, but जहाँ पे जो tadpole होगा वो ammonia करेगा. अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए आप इतनी बात याद रखना, इसको आप फ्यूचर में सीखोगे, लेकिन इतना याद रखना कि अगर आपको बॉडी के बाहर अमोनिया निकालना है, यू नीड टू हैव वाटर इन योर सराउंडिंग. अगर आपके पास पानी बहुत सारा है, देन आप अमोनिया को बॉडी के बाहर आप निकाल सकते हो. अगर आपके पास पानी नहीं है, देन यू डोंट एक्सक्रीट आउट अमोनिया. सो दैट इज व्हाई अमोनिया एज अ वेस्ट यू फाइंड गेटिंग एक्सक्रीटेड बाय माय फिशेस, टैडपोल, बट नॉट योर एडल्ट फ्रॉग. Neither you find this kind of excretion done by someone else like your birds or reptiles. They don't do that. Ammonia को body के बाहर निकालने के लिए you always need to have a excess of your water is need to be there present over in that. Along with that you will find, अगर मैं tadpole की यहाँ पे बात करता हूँ, जो आपका पानी में आपको मिलेगा देखने के लिए, that tadpole is also known to have presence of a lateral line. Tadpole जो आपका यहाँ पे होगा, this is also known to have presence of a lateral line आपको मिलेगी यहाँ पे. Lateral line में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ that lateral line is something which will actually help in your sense organ. ये बेसिकली आपका हेल्प करता है आपके एनवायरमेंट को सेंस करने के लिए. It has been used. So you will have a lateral line which you will find in the tadpole. Same lateral line is something you are also finding in your fishes as well. So यही आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. Now if we talk about my reproduction in this, you will have a fertilization आपका यहाँ पे external होगा. So fertilization is going to be happening external. And they are my oviparous in nature. So this is going to be holding true for all the amphibians. Oviparous in nature. So oviparous आपके मिलेंगे आपको होते हुए, and they are going to be
हैविंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। अगर मैं इनके डाइट की बात करता हूँ, सो योर फ्रॉग इज गोइंग टू बी कार्निवरस इन नेचर, बट टैडपोल आपका यहाँ पे होता है हर्बीवोरस। तो ये भी आप याद रखना कहीं ना कहीं, that your frog or adult animal. So basically, you can say this group, this amphibians, can be showing the both kind of mode of reproduction, like your feeding habit. They can be herbivores. They can also show the carnivorous diet. Both the things can be shown by this group of amphibians. Now, amphibians के बारे में आप generally आपको याद रखना है यहाँ पे कुछ main चीजें. They don't have scale on the body. The body can be slimy. Body आपके यहाँ पे slimy हो सकती है. Now, when I say body can be slimy, ये आपको specifically आपको दिखता है frog और salamander के अंदर. So जब आप इनकी body देखते हो, so body surface can be have slimy secretion. चिपचिपा secretion आपको body surface के ऊपर आपको मिलेगा. Now, this slimy secretion on the body surface is something you will particularly see in your frog, Sicilian, and also your salamander. Salamander के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि salamander एक छिपकली जैसा दिखता है, बट वो कलरफुल होता है. ऑरेंज, ग्रीन, रेड कलर का आपको मिलेगा वो salamander, राइट? इट्स द साइज ऑफ अ हाउस गेको. घर पे जो घूम रहे होते हैं ना छिपकली, उसी साइज का वो होता है. और वो भाग नहीं सकता, वो बहुत स्लो होता है और बहुत स्लाइमी होता है. एंड द बॉडी सरफेस इज कोटेड बाय अ पॉइजन. मतलब बेसिकली बॉडी सरफेस इज कोटेड विद द पॉइजनस स्लाइमी सिक्रीशन. तो जनरली कोई एनिमल उसे खाता नहीं है. तो इवन दो अगर वो बहुत धीरे चल के जा रहा है ना रोड के ऊपर, उसे कोई एनिमल आके पकड़ेगा नहीं, बिकॉज दैट स्लाइमी सिक्रीशन इज गोइंग टू मेक इट पॉइजनस एंड द एनिमल आर गोइंग टू अवॉइड दैट. सिसिलियन की भी अगर आप बॉडी देखोगे, इट विल बी स्लाइमी सिक्रीशन, बट वो पॉइजनस नहीं होता. फ्रॉग विल आल्सो हैव अ स्लाइमी सिक्रीशन ऑन द बॉडी सरफेस. तो आप बोलोगे कि सर ये तो सभी स्लाइमी हो गए, कौन रह गया इसके अंदर? तो याद रखना, टोड डज नॉट हैव अ स्लाइमी सिक्रीशन. टोड को अगर आपने कभी हाथ में पकड़ा होगा ना, सो टोड की बॉडी रफ होती है और उसके बाद वाट्स होते हैं. सो दैट्स व्हाट यू फाइंड इन द टोड. सो टोड आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट यू फाइंड इन द फ्रॉग. तो ये एक चीज याद रखना कि टोड आपके यहाँ पे अलग हो जाते हैं कंपेयर टू माई फ्रॉग. अगर आपको बरसात का मौसम नहीं है, अगर आपके घर के आसपास अगर आपको कोई उछलता हुआ अगर आपको दिख रहा है, सो दैट हैज टू बी अ टोड. वो फ्रॉग नहीं होगा, वो टोड होगा. टोड याद रखना, वो थोड़ा ड्राई बॉडी सरफेस एंड विल हैव वाट्स ऑन इट्स बॉडी. ठीक है, पहले हम ये खत्म कर दे बेटा, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू कवर दिस सर्टेन थिंग्स ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स ओवर देयर. यू हैव टू नो दैट टैडपोल विल हैव लैटरल लाइन. फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होगा, ओविपेरस. Herbivores can be there, they can be carnivorous in nature, this group. Body surface is having a slimy secretion. Frog, Sicilian, salamander is the example in that. Excretion आपका किडनी से आपके यहाँ पे हो रहा है. Adult frog is going to excrete out the urea. Tadpole are going to excrete out the ammonia. Four limbs के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे copulatory pad. Two pairs of limbs can be observed. Scales आपको बॉडी पे आपको नहीं दिखने यहाँ पे. Respiration can be happening via gills, your lungs, skin and buccopharyngeal respiration. Three chambered heart आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा. The head is divided into my head and the body is divided into my head and trunk. Metamorphosis आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. That means larval stage से you can very clearly see the animal is turning into the adult. And they are all my cold-blooded animals. जब भी आपके सामने आएगा term cold-blooded animals, याद रखना, they cannot regulate their body temperature. इनको external source से ही अपने temperature को ये regulate कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. बताइए आपका क्या सवाल है आपका? सर जो हाइला होता है, That's a frog. फ्रॉग है. That's a tree frog. सर मैं ये पूछ रहा था, उसके पास भी स्लाइमी लेयर होती है. हाँ. और सर जो एक पता नहीं क्या नाम है, एक थाइपोसिस ऐसे कुछ नाम है. पढ़ो, वापस बोलो, नाम पढ़ो, लिखो, बोलो, स्पेलिंग बोलो. ICHTHO. इथायोफिस जो है ना, वो सिसिलियन है आपका. That's a Sicilian. ओके. सिसिलियन वहां पे. ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. So amphibians, they have a dual life, can live in aquatic as well as in the terrestrial habitat. इनका बेसिकली आप सही में मायने में देखा जाता है एम्फीबियंस जब आप यार बोलते हो, इट डज नॉट सिंपली मीन्स कि पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है. दैट डज नॉट एक्चुअली इट मीन्स व्हाट, वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स लाइफ डिपेंड ऑन वाटर एंड अदर लिव्स ऑन लैंड.
क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि एम्फीबियन वो होता है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, देन दैट्स अनट्रू, बिकॉज क्रोकोडाइल भी फिर वैसा हो जाएगा एम्फीबियन। क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है फिर बाहर भी आता है, टर्टल भी पानी में रहता है बाहर भी रहता है। दैट्स नॉट अ ट्रू डेफिनेशन. Amphibian in a true sense means that one of the life cycle depends one of the part of its life cycle depends on water. आपका जो टैडपोल होता है वो आपको पानी में लाइक ग्रो करके मिलेगा, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते और इट वोंट सर्वाइव. सो वन ऑफ द लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन वाटर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज एम्फीबियंस. टू पेयर्स ऑफ लिम्स. देखो कितना बढ़िया लग रहा है फ्रॉग यहाँ पे. आइज विल हैव आईलेट्स ओवर हियर, दैट्स अ सैलामेंडर. ये जो लीफ पे आपका बैठा हुआ है आपका यहाँ पे, दैट्स अ सैलामेंडर. इंडिया में सिर्फ एक ही स्पीशीज मिलती है, दैट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और कहीं नहीं मिलेगा. So salamander will have a tail, frog won't have a tail. Salamander and Sicilian will have a tail, but frog will never have a tail. ठीक है. They have alimentary canal, urinary, reproductive tract open into a common chamber called a cloaca. याद रखना. So they have an alimentary canal. They have an alimentary canal, urinary and reproductive tract. ये तीनों का जो कॉमन ओपनिंग आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड तीनों को कॉमन ओपनिंग हम बोलते हैं यहाँ पे क्लोएका. All of them will have a common opening, and that common opening यहाँ पे आपकी आएगी, यहाँ पे लेबल करा होगा, that's her cloaca. ठीक है. So the common openings are going to be all over cloaca. So now you have your respiration happening via gills. So you'll have gills over here. You have skin. यहाँ पे आप देख सकते हो, स्किन के थ्रू आप यहाँ पे respiration अपने यहाँ पे आप कर सकते हो. Lungs आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. You can see the lungs here, right? माउथ पार्ट से भी आपके यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं बकोफेरेंजियल. तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन. बाकी गिल्स आपको मिलेंगे आपके सिर्फ टैडपोल वाले स्टेज में आपको गिल्स मिलते हैं, बाद में आपको गिल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे. हार्ट 3 चेम्बर्ड है. यू हैव 2 ऑरिकल्स एंड सिंगल वेंट्रिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यू कैन सी दिस. सो नाउ यू कैन सी हाउ इट इज हैपनिंग. फ्रॉग ने यहाँ पे एग ले किए, एग्स आपके यहाँ पे ग्रो करेंगे, एग्स में निकलेगा टैडपोल, टैडपोल आपका ग्रो करेगा एंड देन विल टर्न इनटू द फ्रॉग. This is the life cycle of your particular amphibians. This is how the life cycle of the amphibian is also going to be. अब ये जो आपको लेफ्ट में आपको दिख रहा है ना, दैट्स अ टोड. ये जो लेफ्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज योर टोड. अगर आप टोड की बॉडी सरफेस देखते हो तो ऐसे रफी होती है, तो घर के आसपास आपको टोड मिल जाएंगे. ठंडी का मौसम हो, गर्मी का हो, टोड आपको दिख जाते हैं आसपास घूमते हुए. एंड यू कैन सी द फ्रॉग ओवर, इट्स वेरी क्लियरली इट्स अ हाइला. ये जो है ना आपका, ये आपका हाइला फ्रॉग है. दिस इज योर हाइला फ्रॉग. एंड दिस इज माय सिसिलियन. दिस ओवर हियर इज माय, इसको इवन बोलते हैं एज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. सिसिलियन को आप इवन बोलोगे आपका यहाँ पे एज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. दे आर डिफिकल्ट टू फाइंड. ये आपके मॉनसून में आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको मिल सकते हैं, बट दे आर मतलब बहुत मुश्किल होता है इनको ढूंढना. बट येस, यू कैन फाइंड देम इन द मॉनसून सीजन में. आप अगर जाते हो वहां पे तो आप उन्हें ढूंढ सकते हो. एंड दिस ओवर हियर इज माय सैलामेंडर. ये मेरा यहाँ पे सैलामेंडर. So these are the examples you have to know. You have a toad, you have a hyla, salamander and Sicilian. यही 4 ग्रुप्स वैसे बेसिकली आपको मिलते हैं. उनमें से टोड के ऊपर आपको स्लाइम सिक्रेशन आपको नहीं मिलेगी. सिसिलियन तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कलरफुल है. ये अर्थ फॉर्म से थोड़ा बड़ा होता है, अर्थ फॉर्म से थोड़ा सा बड़ा होगा, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट एनिमल टू बी सीन. ठीक है. सो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चेंबर नोन. पूरा बताइए क्या होगा आंसर इसके अंदर. और ऑप्शन बी क्लोका. ऑलराइट. अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ. देखो फ्रॉग के साथ क्या होता है ना, व्हाट यू फाइंड इन द फ्रॉग, फ्रॉग विल हैव 2 थिंग्स. जब फ्रॉग की आप बात करते हो, व्हेन यू डिस्कस अबाउट द फ्रॉग, तो एक बार याद रखना फ्रॉग के अंदर दैट फ्रॉग विल हैव मिडल ईयर एंड इट विल हैव द इनर ईयर. सो फ्रॉग विल हैव अ मिडल ईयर एंड इनर ईयर. अब इन दोनों को कवर कौन करता है, तो इन दोनों की जो कवरिंग होती है, इनके ऊपर एक कवरिंग आपको मिलेगी वहां पे, एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज माय टिम्फैनम. तो मिडिल ईयर और इनर ईयर के ऊपर एक कवरिंग मिलती है. इट डज नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर. जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर है ना हमारे पास, वैसे उसके पास नहीं होता. इट विल हैव अ मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, और इसको कवर करता है आपका एक स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय टिम्फैनम.
So tympanum is something which will be covering my middle layer and inner layer. तो tympanum term अगर आपके सामने कभी आया, याद रखना the term belongs to my frog. ये term मेरा belong करता है frog को. So this is something you have to know. तो middle layer और inner layer को cover करने का जो एक structure आपको मिलेगा वहां पे आपका, that's a tympanum. So जब आप frog को देखते हो ना, तो आपको tympanum दिख जाता है. It is the outer covering of the middle layer and inner layer. So that is something you have to know. That's the external thing you will find. So tympanum भूलना मत, ये आपको नाम हमेशा याद रखना है in terms of the frog. बाकी operculum you know that fish के अंदर मिलता है, both fish के अंदर, something you are familiar with that. अच्छा मुझे बताओ, मेरे शार्क के अंदर एयर ब्लैडर होगा या नहीं होगा? शार्क के अंदर will I have एयर ब्लैडर? No, sir. No, sir. Air bladder is absent. स्टिंगरे में होगा, स्टिंगरे के अंदर will the stingray will have the air bladder? Yes, sir. अरे नहीं होगा. No, sir. Stingray is also chondrichthyes. स्टिंगरे भी आपका आएगा कॉन्ट्रेक्थिस के अंदर, so even that won't have the air bladder. ठीक है. वो जो फिश थी ना आपकी, रोहू नाम की फिश थी, उसके अंदर होगा नहीं होगा एयर ब्लैडर? रोहू सर उसमें होगा उसमें होगा होगा रोहू में sir. आपको मिल जाएगा because yes that's a bony fish, right? ठीक है. So that is something we have seen. We have seen the sexes are separate and oviparous in nature. ये सब यहाँ पे हम देख चुके हैं. So ichthyophis is going to be your Sicilian, right? Then you have a salamander, जिसको हम कहते हैं salamandra. You have a hyla and bufo is your toad. घर के आसपास आपको बुफो मिलेगा. हाइला तो आपको नहीं मिल सकता. हाइला आपके दिल्ली में हो ना आप लोग. दिल्ली में घर के आसपास नहीं मिलेगा. घर के आसपास आपको ये मिल सकता है, हेप्लोबैट्रिकस मिल सकता है, but not hyla. So these are the things you have to know. This is something you will find over here. Let's start with reptilia. Let's start with the next group. That's a reptilia. आप में से कितने लोग इधर रेप्टाइल्स पसंद है? कोई भी नहीं. All right, all right. बढ़िया बेटा. रेप्टाइल जनरली लोगों को नहीं पसंद होते हैं. आई हैव सीन दिस कि पीपल डोंट लाइक रेप्टाइल्स. ईदर इट्स अ हाउस गेको और समथिंग एल्स. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेप्टाइल्स ओवर हियर ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट दे आर आल्सो माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. दे आर आल्सो माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. यहाँ पे अगेन याद रखना, दे कैन नॉट रेगुलेटेड पर टेम्परेचर. तो दैट्स व्हाई कॉल देम कोल्ड ब्लडेड एनिमल. इसका पता है सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आप देख सकते हो वो आपको ये मिलेगा. आप कभी नोटिस करना, कभी अगर आप जू में जाते हो ना, आप दिल्ली में हो, दिल्ली में बहुत बढ़िया जू है, अगर आप वहां पे कभी जाते हो देन यू विल सी वहां पे लोग स्नेक्स को रखते हैं ना. स्नेक्स को जहां पे लोग रखते हैं उनके वहां पे उन्होंने एक बल्ब लगा के रखा होता है. जिस ग्लास चेंबर में जहां पे लोग स्नेक्स को रखेंगे ना, वहां पे बल्ब लगा के रखा होगा उन लोगों ने. वो लगाया ही इसलिए होता है ताकि जब भी स्नेक को अपना हीट लेनी हो तो वहां पे नीचे आके वो बैठ सके. दैट इज समथिंग दे विल एंश्योर दैट. और जहां पे भी ये लोग क्रोकोडाइल को रखते हैं तो उसे खुले आसमान के नीचे रखते हैं ताकि जब भी क्रोकोडाइल को धूप लेनी हो वो बाहर आके बैठे पानी की और अपनी धूप ले सके. याद रखना, द रेप्टाइल्स कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड दैट इज व्हाई दे डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्स. तो अगर आप कभी टर्टल भी पालते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि टर्टल को आप बास्किंग कराओ. बास्किंग मतलब उसे आप धूप में जाके रखो या धूप में वो जाके बैठ पाए ताकि वो सनलाइट को ले पाए. अगर आप ऐसा नहीं करते ना, द टर्टल वोंट सर्वाइव. So that is why if you see any of the enclosure of the snake, कभी भी आप स्नेक को एंक्लोजर आप देखते हो तो जिस चेंबर में ग्लास चेंबर से रखा जाता है ना, दे विल मेक श्योर कि वहां पे टेम्परेचर रेगुलेट किया जा सके. अगर वो नहीं हो रहा देन द स्नेक वोंट सर्वाइव. ठंड के अंदर वो खत्म हो जाएगा. आप ये चीज भी आप नोटिस करना, आपकी जो हाउस गेको होती है ना, घर की छिपकली, वो ठंड में आपको दिखती नहीं है. यू डोंट फाइंड देम बीइंग एक्टिव इन द ठंडी वाले सीजन में. गर्मी में एक्टिव रहती है वो, बट ठंडी में आपको दिखेगी नहीं वहां पे. So these animals cannot regulate their body temperature. I'll give one more example. अगर आपको कभी क्रोकोडाइल देखना हो, the best time would be winter season. क्योंकि विंटर सीजन में अगर आप रिवर के बैंक पे जाते हो, आपको बाहर बैठे हुए वो वैसे ही दिख जाएगा. क्योंकि ठंड के टाइम पे वो बाहर आके बैठेगा बास्किंग करने के लिए and will take up the heat from the environment. So that is something you have to know. These animals cannot regulate their temperature and that is why we have to be very careful when we are dealing with them. So एक ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. Then that's your curved animals. That's your reptiles का पहला trait आपको यहाँ पे याद रखना है. They will have 3 chambered heart. Yes sir, I had a turtle, but that time I don't know that it was a poikilotherms. Field love अभी क्या वो हमारे साथ है या 3 chambered heart? You'll have a 3 chambered heart will be seen in the reptiles, except your crocodile. Except
योर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आपका यहाँ पे एक्सेप्शन बन जाएगा। क्रोकोडाइल इज गोइंग टू बी एक्सेप्शन, दिस विल बी हैविंग अ 4 चेंबर्ड हार्ट। सो क्रोकोडाइल आपके यहाँ पे एक्सेप्शन आपको मिलेगा, आपका यहाँ पे हैविंग अ 4 चेंबर्ड हार्ट। ऑल राइट लव, ऑल राइट। वैसे जनरली होता क्या है ना कि जब कोई पेट देता है ना तो ये बताते हैं उन्हें, जनरली वो इन्फॉर्म करते हैं कि इसको ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा, बट इट्स डिफिकल्ट। आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपके पास जो टर्टल था लव, वो ग्रीन कलर का था और उसके माउथ के ऊपर रेड कलर के स्ट्राइप्स थे। वाज दैट द टर्टल यू आर हैविंग एज अ पेट? सो दे आर माय कूल पेट एनिमल्स, 3 chambered heart, and except your crocodile, because crocodile will have a 4 chambered heart and that's the exception. So ये चीज आपको याद नहीं, they will have the exception over here. Along with this you will find the reptiles are known to have a scales on their body. They are known to have scales on their body. तो स्केल्स आपको काफी क्लियर कट देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे आपकी छिपकली हो, स्नेक हो, क्रोकोडाइल हो या टर्टल हो, यू विल हैव द स्केल्स ऑन द बॉडी। स्केल्स ऑफ बॉडी पे आपको दिख जाते हैं। स्किन इनकी यहाँ पे रहती है ड्राई, यू शुड नो दैट द स्किन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ड्राई एंड रफ। इनकी जो स्किन आपको यहाँ पे मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी रफ एंड ड्राई। रफ एंड ड्राई स्किन आपको मिलती है, तो यहाँ पे आपको कोई स्लाइमी सिक्रेशन आपको नहीं मिलेगा। द वे यू आर फाइंडिंग इन द एम्फीबियंस ना, you don't have any kind of slimy secretion in them, so you have a rough and a dry skin आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, and you will have a scales on the body. Scales you must have seen, right? That is something you will find in them. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, if I talk about my turtles and tortoise, if I specifically talk about my turtles and tortoise, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। तो टर्टल्स एंड टॉर्टोइस के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, यू कॉल देम एज, वहां पे स्केल्स तो चलो ठीक है, बट उसके साथ यू विल हैव स्क्यूड्स, SCUTES, स्क्यूड्स। स्क्यूड्स आपको वहां पे मिलते हैं देखने के लिए ना। स्क्यूड्स आपके क्या होता है, अगर आपने कभी किसी टॉर्टोइस को देखा होगा ना, तो टॉर्टोइस का जो बैक होता है उसके ऊपर आपको ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस मिलेंगे। स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस ऑन द बैक ऑफ द टर्टल। टॉर्टोइस के अंदर आपको क्लियर Yes, sir. जाते हैं, बट यू विल हैव दिस बॉक्सेस ओवर देयर। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्क्यूड्स, इनको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्क्यूड्स। तो याद रखना, जब आप किसी टॉर्टोइस को ऑब्जर्व करते हो honeycomb pattern के, right Alia? So when you observe a tortoise ना, so you will have this kind of shape you will get. तो जो शेल होता है ना, so you'll have a shell on the upper side and lower side, दोनों साइड पे आपका शेल होगा। अपर साइड का जो शेल होता है ना, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कैरापेस। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कैरापेस। सो अपर साइड का जो शेल होता है, ऊपर का जो शेल होता है, उसे हम कहते हैं कैरापेस, और नीचे का तो आपका यहाँ होता है, उसे हम कहते हैं प्लास्ट्रॉन। उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ प्लास्ट्रॉन। Now this is a shell of a tortoise. This is a shell of your tortoise. याद रखना, टॉर्टोइस का जो शेल होता है ना, वो आपका होता है डोम शेप्ड, ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा। दैट्स अ शेप ऑफ द टॉर्टोइस, सो दैट्स अ शेल ऑफ द टॉर्टोइस, सो इट इज गोइंग टू बी डोम शेप्ड। आप लोगों ने बीच में सवाल पूछा था कि टर्टल टॉर्टोइस में आपका डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो एक चीज याद रखना, टॉर्टोइस का शेल आपका ऐसे बड़ा सा होगा, डोम शेप्ड होगा। सेकेंड चीज, टॉर्टोइस आपके स्विम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने टॉर्टोइस को गहरे पानी में डाल दिया, वो डूब जाएगा, इट वोंट सर्वाइव। सो टॉर्टोइस कैन नॉट स्विम बिकॉज दे हैव एलिफेंट फुट। अगर आपने कभी टॉर्टोइस का फुट देखा होगा ना, जहां से वो चलता है, वो बड़ा बड़ा फुट होता है, वो स्विम करने के लिए नहीं बना। सो टॉर्टोइस आर नोन टू हैव अ एलिफेंट लाइक फुट। दे आर नॉट मेंट फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग करने के लिए यहाँ पे बने ही नहीं होते हैं, ठीक है। सो यू हैव अ डोम शेप्ड, एक सेकंड रुकना बेटा, दे हैव अ डोम शेप्ड शेल, राइट। उनका शेल यहाँ पे डोम शेप रहेगा, एंड दे विल हैव एलिफेंट लाइक फुट, जिसकी वजह से वो लैंड पे चल सकता है, बट इट कैन नॉट स्विम इन वाटर, इट कैन नॉट एक्चुअली गेट इनसाइड डीप वाटर। पानी पीने के लिए वो जा सकता है नदी के पास, बट यू कैन नॉट फाइंड देम स्विमिंग इन वाटर। सो दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं टर्टल को ऑब्जर्व करता हूँ, ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे टर्टल को ऑब्जर्व करूंगा ना, सो टर्टल विल हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। टर्टल का जो शेल होता है ना, वो काफी स्ट्रीमलाइन होता है। सो इट विल ऑल्सो हैव द कैरापेस, यहाँ पे भी आपको कैरापेस ही बोलेंगे इसे हम, यहाँ पे कुछ अलग नहीं बोलेंगे। इट विल ऑल्सो हैव द प्लास्ट्रॉन, बट टर्टल के अंदर इट विल बी स्ट्रीमलाइन। तो टर्टल के अंदर द शेल इज गोइंग टू बी स्ट्रीमलाइन।
अब स्ट्रीमलाइन शेल होने का फायदा यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि टर्टल पानी में रहता है, टर्टल पानी में बढ़िया रहेगा, स्विम करेगा, दौड़ेगा, सब कुछ करेगा वहां पे. सो दैट इज व्हाई इट नीड्स टू हैव अ स्ट्रीमलाइन शेल ओवर हियर. एंड टर्टल को अगर कभी आप देखोगे तो दे विल हैव अ पैडिंग, सो दे विल हैव योर वेब्ड फीट, दे विल हैव द वेब्ड फीट. तो इनके जो फीट होते हैं उनके अंदर आपको वेबिंग मिल जाती है. आपने वेबिंग देखी होगी ना, जैसे वो बतख में होती है, डक में होती है वेबिंग, वैसी वेबिंग आपको टर्टल्स के अंदर भी आपको दिख जाती है. सो जनरली जो आप एज अ पेट रखते हो ना, जो आपको पेट शॉप में मिलता है, वो जनरली आपको जो स्पीशीज वो लोग देते हैं, दैट्स वो इंडिया की नहीं होती. इंडिया के टर्टल्स आप पाल नहीं सकते हैं. दैट इज अ रेड ईयर स्लाइडर जिसके अंदर आपको वेबिंग मिलती है, एंड दे आर एक्चुअली अ टर्टल. सो पानी में आपको स्विम करते हुए आपको मिल जाता है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो यार इतना डिफरेंस आपके यहाँ पे क्या होगा, टर्टल विल हैव अ स्ट्रीमलाइन शेल, they will have a webbing in the feet, they can swim in water, they can easily swim in water. On the other hand, your tortoise, neither they can swim in water, और इनका जो शेल यहाँ पे होगा वो आपका डोम शेप्ड होगा. एंड दे विल हैव अ एलिफेंट लाइक फुट, जिसकी वजह से वो सिर्फ लैंड पे चल सकते हैं, पानी में तैर नहीं सकते. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. क्या इतनी बात है आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द टर्टल एंड टॉर्टोइस का डिफरेंस यहाँ पे समझ आ रहा है आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, द लाइक्लीहुड कि जब आपको कोई मिल जाए पानी के पास बैठा हुआ, इट इज अ टर्टल. टॉर्टोइस बहुत रेयर होता है, टॉर्टोइस ढूंढना बहुत रेयर होता है, और वैसे भी इंडिया में उसका काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है. मतलब इंडिया से लेके वो बाहर भेजते हैं पकड़ पकड़ के, मतलब इलीगली पोचिंग होता है टॉर्टोइस का. तो टॉर्टोइस तो वैसे दिखना बहुत मुश्किल होता है, बट यू कैन सी द टर्टल. टर्टल आपको नदी के आसपास बैठा हुआ आपको मिल जाएगा. दैट्स समथिंग व्हिच इज कॉमनली सीन. ओके, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. यू हैव अ कोड ब्लड एनिमल्स, यू हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट, स्केल्स ऑन द बॉडी, स्किन इज गोइंग टू बी रफ एंड ड्राई. टर्टल एंड टॉर्टोइस विल हैव स्क्यूट्स, स्क्यूट्स आपको मिलेंगे आपके बॉडी के ऊपर. सो दैट मींस ये स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे आपके कैरापेस के ऊपर. यू कॉल देम एज स्क्यूट्स. इसमें बस एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, टर्टल टॉर्टोइस के अंदर एक और चीज ऐड करूंगा. यू हैव वन मोर ग्रुप ऑफ टर्टल्स व्हिच यू कॉल देम एज सी टर्टल्स. एक और ग्रुप आपको यहाँ पे होता है जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज सी टर्टल्स. नाउ सी टर्टल्स को अगर आपने कभी देखा होगा टीवी के अंदर, सो उनके पास वेब्ड फीट नहीं होते, दे हैव फ्लिपर्स. इनके पास आपको मिलेंगे आपके फ्लिपर्स, और फ्लिपर्स अगर इनके पास है यहाँ पे, दैट एक्चुअली हेल्प इन स्विमिंग. और सी टर्टल के साथ एक और बात याद रखना, दे कैन नॉट रिट्रैक्ट देयर हेड बैक इनटू द शेल. दे कैन नॉट रिट्रैक्ट their head back into the shell. ये अपने हेड को वापस से शेल में खींच के नहीं ले, मतलब जैसे सारे टर्टल्स और टॉर्टोइस के आप उनके पास होगे तो अपना शेल के अंदर चले जाएंगे अपने पूरी बॉडी को लेके. सी टर्टल ऐसा नहीं कर सकता. सी टर्टल ऐसा नहीं कर सकता, विच डज हैव इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ओवर हियर, वो हम बाद में देख लेंगे. बट ये सी टर्टल आपके यहाँ पे करेगा नहीं ये चीज, बिकॉज इट लिव्स इन ओशन, मतलब वो पानी में रहता है. लैंड पे सिर्फ आपका टर्टल तब आएगा जब उसे ब्रीडिंग करना होगा, व्हेन इट हैज टू लाइक ले द एग्स, वो भी फीमेल आएगी. बाकी पूरा टाइम ये ओशन में रहेगा. अगर आप ओशन में रह रहे हो, देन यू हैव टू ब्रीद ऑल द टाइम, यू हैव टू कम ऑन द सरफेस टू ब्रीद. सो दैट इज व्हाई इट डज नॉट हैव द ऑप्शन टू रिट्रैक्ट इट्स हेड बैक इनटू द शेल. ये चीज याद रखना. सो आपने अगर कभी सी टर्टल को हैंडल करते हुए किसी को देखा होगा ना, अपना हेड नीचे नहीं ले सकता, अंदर नहीं ले सकता वो. दैट्स समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, अच्छा, अब इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो. इफ देयर इज सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. बताइए सर, करके एक एक करके. पहले अरीशा आप बताइए अपना सवाल क्या आपका. सर, जो एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल होता है वो क्या अपना रिट्रैक्ट कर लेता है हेड? एलिगेटर स्टैबिंग क्रिएटर, हाँ कर सकता है वो. यस, एलिगेटर स्टैबिंग क्रिएटर अपना रिट्रैक्ट कर सकता है हेड को. ओके सर. राइट. बताइए हुस्नवाज, बोलिए. आफ्ताब। हाँ सर, सुनिए. हम्म. सर, आपने ये कहा था कि मतलब टोर्टोइज वाटर में ही रहता है ना? टॉर्टोइस पानी में नहीं रहता, लैंड पे रहता है वो. टर्टल रहता है पानी अच्छा, के अंदर. हाँ. टर्टल पानी में रहता है, ठीक है, हम्म. और टोर्टोइज मतलब लैंड पे रहता है, तो हम हम्म. टोर्टोइज को टेरेस्ट्रियल कहेंगे ना? हाँ. और वो जो टोटो कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, और टर्टल है उसे हम्म. एक्वेटिक कहेंगे ना? हाँ राइट. ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन है ना? अब तो हो गई ना दूर.
हाँ टॉर्टोइज ठीक है मतलब लैंड का टेरेस्ट्रियल हो गया वो, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन देम, टर्टल एंड टॉर्टोइज के अंदर। सर टॉर्टोइज टर्टल हैव एलिफेंट फुट, टॉर्टोइज में होता है बेटा, टॉर्टोइज में होता है, टर्टल में नहीं। एलिफेंट टर्टल में तो यू हैव अ वेब फीट जिसकी मदद से आप यहाँ पे स्विम कर सकते हो, यू कैन हैव अ वेविंग ओवर एंड यू कैन स्विम ओवर देयर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो व्हिच फैक्ट ऑफ टॉर्टोइज मेक्स देम एक्वेटिक? टॉर्टोइज एक्वेटिक नहीं होते। टॉर्टोइज आर समथिंग यू विल फाइंड ऑन लैंड इन द फॉरेस्ट ग्रोइंग ओवर देयर, वो एक्वेटिक नहीं होते हैं। दे जस्ट ड्रिंक वाटर, उनका पानी के साथ उतना ही रिलेशन होता है कि वो पानी पीने के लिए वहां पे आएंगे। एम्फीबियंस बेटा आप कहाँ चले गए आलिया? लेट्स कम बैक टू दैट एम्फीबियंस लेटर ऑन। चलो पहले हम इसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ट्रेट्स देख लिया। दीज आर द फ्यू ट्रेट्स वी विल बी फाइंडिंग इन देम। स्केल्स ऑन द बॉडी एंड स्किन इज गोइंग टू बी रफ ओवर देयर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेशन, so respiration के लिए they will always have your lungs। यहाँ पे कोई गिल्स की बात कोई करेगा नहीं, यहाँ पे इनके पास होते हैं लंग्स। चाहे वो सी टर्टल हो, फ्रेश वाटर टर्टल हो, स्नेक हो, कुछ भी हो, they will always have the lungs, they will always have a lungs, they won't have anything else। so lungs के थ्रू आपको यहाँ पे होगा आपका रेस्पिरेशन। तो ये चीज याद रखनी है आपको यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे याद रखना है कि लंग्स तो चलो हमने यहाँ पे यूज कर लिया रेस्पिरेशन के लिए, along with that you should know that अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सक्रीशन की, so excretion के लिए you will also again have the well developed kidneys, और यहाँ पे आप excrete out करोगे अपने यहाँ पे यूरिक एसिड। so they are known to excrete out the यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को आपने यहाँ पे excrete करना है। ये एक चीज याद रखना, they will have lungs and they will be excreting out the uric acid from the kidneys। lateral line की आप यहाँ पे बात नहीं करते, there is no discussion of lateral line happening in there। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनके रिप्रोडक्शन की, if I discuss about the reproduction then you should know very clearly that they will be my, बाद में बेटा बाद में, they will be showing the internal fertilization। so internal fertilization यहाँ पे आपका होगा and they will be your oviparous in nature, they will be my oviparous in nature। सब के सब यहाँ पे एग ले करेंगे। देखा जाए तो कुछ आपके रेप्टाइल्स यहाँ पे होते हैं, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मैं है ना आ रहा हूँ 2 मिनट। मैं पहले कह रहा हूँ मैंने क्लास खत्म नहीं करना जब तक हमारा मैमल्स खत्म नहीं होगा, ठीक है? I'm feeling this thing। So you'll have internal fertilization and you are going to be oviparous in nature, right? ये दो चीज याद रखो। Now let me see some questions over here जो आप लोग चैट में डाल रहे हो। आप लोग कह रहे हैं सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। अरे नहीं बेटा लव कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, सर ये ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स यूरिया लाइक सब्सटेंस एक्सक्रीट क्यों करते हैं? अरे किडनी के बाद ही समझ में आया। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। लव कुछ होता क्या है इसके अंदर, दैट देयर इज अ रूल, द रूल सेज दैट animals who are living on land, animals who are living on land, animals who are known to conserve water, they are supposed to conserve water, they will excrete out urea। ये याद रखना, जो एनिमल लैंड पे रह रहा है, जिसको वाटर कंजर्व करना है, जिसको पानी को कंजर्व करना है, इसका प्रायोरिटी की पानी को वो कंजर्व करेगा। जैसे हम लोग, हमें पानी को कंजर्व करना होता है, इसलिए हमारे पास किडनी है एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द किडनी। सो दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया, ठीक है? यूरिया जब आप निकालते हो ना बॉडी के बाहर तो उसमें पानी का लॉस कम होता है, राइट? आपको इसी रूल के हिसाब से याद रखना है कि जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, लेट्स टॉक फॉरगेट एम्फीबियंस, लेट्स टॉक अबाउट फिशेस ओवर हियर। एक्सट्रीम एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। फिशेस आर लिविंग इन वाटर, फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट कर सकती है बिकॉज अमोनिया को निकालने के लिए आपको पानी बहुत चाहिए होता है और उनके पास होता है वहां पे, सो दे कैन एक्सक्रीट आउट द अमोनिया वहां पे, राइट? एंड देन यू हैव अ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका इट इज अ मिक्सचर ऑफ फीकल वेस्ट एंड वाटर। मतलब यूरिक एसिड के अंदर आप देखा जाए तो आपका लाइक सबसे कम आपका जो पानी जा रहा होता है ना वो आपको यूरिक एसिड में लग रहा होता है, देखा जाए तो। अब आपको भी नोटिस करना ना, यू ट्राई टू पे अटेंशन टू द फीकल वेस्ट ऑफ द बर्ड। आपने कभी बर्ड का अगर फीकल वेस्ट देखा, इट्स अ पेस्ट लाइक होता है वो, इट्स अ पेस्ट लाइक थिंग, व्हाइट कलर का पेस्ट होता है वो, राइट? बर्ड का अगर देखा हो तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ योर यूरिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज डन ओवर देयर, बट वो बनाने के लिए आपको काफी एनर्जी आपकी लग जाती है। सो हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप का आपको मिलता है आपका मोड ऑफ एक्सक्रीशन, और उसका रीजन यहाँ पे ये बनता है कि वो किस टाइप की लाइफ वो एनिमल वहां पे जी रहा है, what kind of life the animal is living over there, and because of that it will have a certain kind of excretory product over there। normally अगर आप mammals की बात करते हो then they will have a urea, birds and reptiles के अंदर will have a uric acid,
and then you have your aquatic animals will be having the ammonia in them as a waste of excretion. इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझोगे जब आप चैप्टर 19 पढ़ोगे एक्सक्रीशन का. सेमी सॉलिड, राइट, सेमी सॉलिड. अरीशा, आई होप लव कुछ ये समझ आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ. Which fact of tortoise makes them? अच्छा, amphibians के लिए the part of their life they spend initially in water, from egg to tadpole, right? That part of their life makes them in a real sense amphibians. वो उनका लाइफ उस पर डिपेंड करता है आलिया, पानी के अंदर, उसके बाहर वो सर्वाइव नहीं कर सकता. So that is a part which will make them amphibians. Turtles are aquatic, spend most of the time in water, right? Purva, that's true. And yeah, ठीक है, all right. तो ये आपको यहाँ पे होते मिल जाएगा. तो अभिषेक, आफ्ताब, क्या मिस किया था आपने यहाँ पे? रेस्पिरेशन से? नहीं सर, एक्सक्रीशन किडनी के बाद से सुनाई नहीं दिया था कुछ. एक्सक्रीशन किडनी के बाद में आपको ये कह रहा था कि आपका यूरिक एसिड यहाँ पे आप एक्सक्रीट कर रहे हो. दैट्स व्हाट रेप्टाइल्स आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट, मेजॉरिटी ऑफ देम. इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको होते हुए यहाँ पे मिलेगा, एंड दे आर माय ओविपेरस इन नेचर. एग लेयर्स होते हैं. यू हैव सीन देम लेइंग द एग्स, कवरिंग द एग्स ऑन द सॉइल. दैट्स व्हाट दे डू. सो दिस इज व्हाट माय रेप्टाइल्स आर नोन फॉर. ठीक है. एक और चीज यहाँ पे याद रखना, दे हैव 2 pairs of limbs. They have 2 pairs of limbs. ये तो कॉमन बात है. Except your snakes, right? They will have 2 pairs of limbs except the snakes. So except snakes, उनके पास कुछ नहीं होता, कोई limbs नहीं होते. So you'll have 2 pairs of limbs. अब आपको याद ही रखना है, their limbs will be having pentadactyl structure. So they will have 2 pairs of limbs and they will be showing pentadactyl kind of arrangement. Pentadactyl will be seen as my phalanges. या phalanges आप यहाँ पे याद रखो. अगर आपको pentadactyl का मतलब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, phalanges आपको याद नहीं रहेगा. You will find, अगर आप कभी ऑब्जर्व करते हो ना, अगर आप किसी हाउस गए हो, अगर आप फोल्डिंग को ऑब्जर्व करते हो तो आपको कितने टोज वहां पे मिलेंगे? आपको वहां पे 5 मिलेंगे आपको वहां पे. सो 5 टोज विल बी सीन इन देम. सो 5 टोज आपको मिलते हैं हर एक हाथ के अंदर. उसको हम बोलते हैं आप एज अ पेंटाडेक्टाइल. दैट इज समथिंग वी कॉल एज अ पेंटाडेक्टाइल. सो यू कैन रिमेंबर एज अ पेंटाडेक्टाइल टोज. यू कैन लाइक दिस, यू कैन रिमेंबर दिस. सो याद रखना, चाहे वो आपका क्रोकोडाइल हो, घर की छिपकली हो, आपका कोमोडो ड्रैगन हो, ऑल ऑफ देम विल बी शोइंग द पेंटाडेक्टाइल टोज आपको वहां पे मिल जाएंगे. तो एक ये बात भी आपको इसके अंदर याद रखनी है. एक 5 digits बेटा, 5 digits, right? That's what you will be finding in them. So these are the things you have to know in them. So this is my 2 pairs of limbs you will find, and snakes won't have any kind of limbs. Snakes के पास, I hope आपको मालूम है, they don't even have a ear. So all of them will have the ear, but snakes don't have ear, so they cannot, like, no ear for snakes. ठीक है, चलो कुछ हम ट्रेड्स यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट. So they are called as my reptiles को हम even कहते हैं crawlers because they creep, जमीन के पास चलते हैं, बैठ के चलते हैं, जमीन से चिपक के चलते हैं. So they are called as my crawlers. Mostly terrestrial, dry conified skin. Epidermal scales and scutes have been seen. Scutes हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. Scutes are something you can find on your particular tortoise के ऊपर आपको काफी clearly आपको वहाँ पे दिख जाएंगे. Then crocodile is example you can see in this. Tymphanium is present, so you have this external ear. आपको tymphanium आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा. 2 pairs of limbs are observed. Shed their scales as a skin cast. याद रखना, आपका snake हो गया, then आपके lizards हो गए. They can shed their skin. ये अपने skin को shed कर सकते हैं. Skin snake को लेकर तो आप लोग जानते हो, but lizard भी कर सकती है. Lizard can also shed their skin. So snake and lizard are known to shed their skin and the scales. 3 chambered heart आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट एक्सेप्शन आपको याद रखना है, दैट्स अ क्रोकोडाइल व्हिच विल हैव 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. बट बाकी सब के अंदर आपको मिलेगा आपका 3 chambered heart. ये है आपका यहाँ पे एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल. रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्म्स, जो बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको यहाँ पे. अरीशा को क्या, हाउ डू दे शेड देयर स्किन्स? हाउ डू दे शेड देयर स्किन मींस व्हाट अरीशा? एक रुक जाओ 2 मिनट. दे आर गोइंग टू बी ओविपेरस इन नेचर. ये लग रहा है इसके एग खुद के नहीं है, ये खाने के लिए आया है फॉर श्योर, क्योंकि स्नेक कभी ऐसे नेस्ट नहीं बनाते हैं. बट यस, दैट वुड बी ओविपेरस इन नेचर. ठीक है. दिस इज योर मॉनिटरी लिजार्ड. सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पे इंटरनल होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो किलोन इज अ टर्टल.
Kilon is a term, genus for my turtle. ये आपका sea turtle है, by the way, आपके सामने जो picture है, that's a sea turtle. Then Calotus is a garden lizard. So आपके घर के आसपास जो आपको गिरगिट दिखता है ना, उसको हम कहते हैं Calotus. याद रखना, उसे कैमलियन नहीं बोलेंगे हम लोग, वो कैमलियन नहीं होता. That's a garden lizard जो आपके घर के आसपास आपको दिख रहा होता है. So please don't say cameleon while looking at the garden lizard. That's a Calotus. And then you have a tortoise. अब tortoise जो आपका होता है, you can see इसका feet कैसा है. The feet is not built for swimming. And you can very clearly see इनका shape भी कैसा है आपका इसके shell का. It is going to be like very large, right? Dome shaped. Okay. So that is what you find in them. So these are the few examples. फिलहाल आप इन्हें यहाँ पे याद रख सकते हो. And also remember all the traits in them. बताइए अरीशा, क्या कह रहे थे आप, बोलिए. सर आई वाज जस्ट आस्किंग कि मतलब किस तरीके से मतलब वो शेड करते हैं अपने जो भी स्किन शेड करते हैं एनिमल्स. तो जनरली होता क्या है, your snake after certain amount of time, it depends on species to species, usually एक साल के बाद their skin like it will start peeling off. तो जब उसे निकालना होगा ना, अपने शेड करना होगा स्किन, तो क्या करेगा, अपने आप को रॉक्स को जाके वो अपने आप को लाइक ब्रश करेगा, राइट. इट विल जस्ट walk like it will try to crawl on the rocks or branches. So because of that you will find the old skin will start peeling off. और जब ओल्ड स्किन आपकी पूरी पील ऑफ हो जाती है, जो वो अपने एफर्ट लगाता है वो करने के लिए, एंड देन विल हैव द न्यू स्किन विल बी सीन ओवर देयर. दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन माय स्नेक्स एंड सम लिजर्ड्स विल आल्सो शो दैट हैपनिंग. कि एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद, जनरली इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर, यू विल फाइंड द ओल्ड स्किन विल स्टार्ट पीलिंग ऑफ. इसको निकालने के लिए द स्नेक विल स्टार्ट moving around the rocks and the branches so that it gives the friction to remove the skin. Okay. Okay. This is what you find happening. Now let's see the example over there. How many chambered heart do crocodile have? बोलो अनम्यूट करके, इसका आंसर क्या होगा? 4 chambers. Four chamber. Way too simple question. ठीक है. So these are the things you have to know in terms of reptiles. अगर इतनी बातें अगर आपको याद रहती है, then yes, you can survive any kind of questions. Okay. Now let's start with my birds. चलिए इसके हम यहाँ पे बात करते हैं. So when we discuss about the aves over here, they will have the forelimbs modified into wings. So forelimbs तो इनके पास भी होते हैं, but they have been modified into wings over here. Aves are my warm-blooded animals. These are my warm-blooded animals. They are my warm-blooded animals, so you should understand they can regulate their body temperature. So एक bird अपना body temperature regulate कर सकता है. ये reptile की तरह नहीं है. So इसको आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ये अपना खुद से regulate कर लेगा temperature. It doesn't need an external source. Okay. You will find, so you will have forelimbs are modified into wings. You will have presence of feathers. You will have a presence of feathers. Feathers आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. Your upper and lower jaw have been modified into your beak. Your upper and lower jaw are modified into beak. तो beak formation आपका यहाँ पे दिखता है. So upper and lower jaw has been modified into beak, and beak does not have a teeth. कभी भी नोटिस करना, आपके beak के अंदर there will be no teeth. So you will have no teeth in the beak. आफ्ताब रुक जाओ. So you'll have a no teeth in beak. So beak के अंदर आपको कोई भी teeth formation आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता. They won't have any kind of teeth over there unless and until it's a Archaeopteryx जो heavy नहीं हमारे पास जिंदा. Okay, so you will find these are the few traits you have to know. You have a forelimbs modified into wings, warm-blooded animals, presence of feathers. Your upper and lower jaw has been converted into modified into your beak, and beaks will never have a teeth within themselves. These are a few things जो आप आराम से देख सकते हो बाहर से bird के अंदर. अब एक और चीज याद रखना, the birds are known to have something called as my preen gland. Birds are known to have something called as my preen gland. Now preen gland is going to have some, it is there on the dorsal side. Dorsal side. You'll have the preen gland near the tail. Near the tail.
अब ये जो आपकी डॉर्सल साइड में आपकी जो पेन ग्लैंड है, यहाँ से आपका हो रहा था आपको ऑयली सिक्रेशन, यहाँ से आपका हो रहा होता है आपका ऑयली सिक्रेशन। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट सी व्हाट इज माय पेन ग्लैंड इज गोइंग टू बी नोन फॉर। अब आप यहाँ पे कभी नोटिस करना, अगर आपके घर पे कोई बर्ड है, अगर आपके पास कोई पेट बर्ड अगर आपके पास है, कोई है आपके पास जिसने रखा हुआ एज अ पेट बर्ड? एनीवन? नो वन? बहुत नो बढ़िया। सर, बस ऐसे ही आ जाते हैं बहुत सारे। वो तो ऐसे हमारे यहाँ भी आ जाते बेटा, बहुत सारे। बट यस, इफ यू नहीं ऑब्जर्व द बर्ड। मतलब डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सो इफ यू ऑब्जर्व द बर्ड्स ना, व्हाट विल हैपन, कभी आप दिन में सुबह सुबह आप नोटिस करना, ये बर्ड्स है ना अपनी बीक को अपने फेदर्स के अंदर ले जा रहे होंगे पीछे, और अपने फेदर्स को अलाइन कर रहे होंगे। You just try to pay attention over what they will do ना, they will move their beak back of their side, वो पीछे की तरफ अपना बीक को मूव करेंगे, और उनका जो बैक होता है ना वहां पे वो बीक को पियर्स करेंगे, मतलब अंदर डालेंगे बीक को, और उसके बाद अपने फेदर्स को लोग अलाइन करेंगे। दे विल यूज देयर बीक टू अलाइन द फेदर्स, और ये वो मॉर्निंग में कर रहे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रीन ग्लैंड में से ऑयल निकाल के लोग अपने फेदर्स को अलाइन कर रहे होते हैं बेसिकली वो लोग। So what they're doing now in the back of their body, like on the dorsal side, they will have this spring gland जहां से ऑयली सिक्रेशन निकल रहा होता है, और इस ऑयली सिक्रेशन को लोग अपने बीक के ऊपर लेते हैं, एंड देन दे विल रीअलाइन देयर ऑल द फेदर्स। ये जनरली वो लोग मॉर्निंग में करते हैं बर्ड्स। अगर कभी आप नोटिस करोगे यू विल सी दैट कि वो उनका यही काम चल रहा होता है, अपने बीक को पीछे डालेंगे, अपने फेदर्स के अंदर टच करेंगे उस स्प्रिंग ग्लैंड को, वो आपको दिखेगा नहीं, obviously you cannot see that, but then after that they will be preening their feathers over there, ताकि उसे वो लोग सही से align कर सके अपने feathers को। This is what preen gland will be seen in them, and it is something which is known for आपके feathers को align करने के लिए, synchronize करने के लिए सही से, that is something it will have the oily secretion. Even अगर मैं बात करता हूँ मेरे aquatic birds की, aquatic birds में क्या होता है कि इनको पानी में रहते हैं लोग, तो पानी में रहने से एक कंसर्न पता है क्या आ सकता है, इफ यू स्टे इन वाटर है ना, देन उड़ने के टाइम पे आपको दिक्कत आनी चाहिए, बिकॉज you are staying in water for a while, then your feathers should become heavy, so it should be difficult to fly for you. ऐसा नहीं होता because of this oily secretion. अगर birds के पास, aquatic birds के पास preen gland जो होते हैं, उसके जैसे it is going to repel the water. This oily secretion is going to repel the water, so even then we are moving in water na, it does not affect their wings, and they can actually fly away from the water very easily. So that's also one thing you have to know in this. ठीक है, सो प्रीन ग्लैंड एक टर्म यहाँ पे याद रखना, ये आपको बर्ड्स के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे। आफ्टर दिस यू विल फाइंड, तो ये एक ट्रेट यू वेरी क्लियरली सीन इन द बर्ड्स, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दिस विल हैव स्केल्स ऑन द हाइंड लिम्स, स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स। सो हाइंड लिम्स के अंदर आपको यहाँ पे स्केल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो हाइंड लिम्स के अंदर विल हैव फ्रेंड्स ऑफ द स्केल्स, कैन बी वेरी क्लियर इन द हाइंड लिम्स। अब scales on hind limbs is an indicator that birds have evolved from reptiles. ये बात सब लोगों ने याद रखनी है, भूलनी नहीं है कि जब आपको दिख रहे scales on the hind limbs, so that means what? This is an indicator that my birds have evolved from reptiles. Birds have evolved from reptiles. ये बात आपको याद रखनी है कि बर्ड्स ने इवॉल्व किया था रेप्टाइल में से, इसका इंडिकेटर क्या है? व्हाट इज द एविडेंस ओवर देयर? द एविडेंस इज गोइंग टू बी दे विल हैव द स्केल्स ऑन द हाइंड लिम्स, और ये वही टाइप के स्केल्स है जो आपको रेप्टाइल्स में मिलते हैं। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे सबको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर हार्ट, हार्ट तो इनका ठीक ठाक ही होता है, दे विल हैव अ 4-chambered हार्ट, विल हैव 4-chambered हार्ट। अगर मैं रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात करता हूँ, if I talk about my respiration, then they will be having the lungs. लंग्स आपको मिलता है रेस्पिरेशन के लिए, और लंग्स के साथ will have one more additional thing जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एयर सैक्स। लंग्स के साथ साथ they will have the presence of the air sacs. So आप ये मान लो कि लंग्स है, उसके साथ एडिशनल कुछ वहाँ पे पाउचेज आपको मिलते हैं, and those additional pouches are called as my air sacs. सो लंग्स और एयर सैक्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे बेसिकली हेल्प इन द ब्रीदिंग के लिए। सो ये आपके रेस्पिरेशन में आपकी मदद करते हैं। आप ये मान लो कि जब बर्ड आपका उड़ के जा रहा है एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो उसे चाहिए ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीजन चाहिए होगा ताकि वो अपना उड़ सके, वो अपना एनर्जी इस्तेमाल कर सके टू मेक द मसल्स मूव। सो इसलिए एडिशनल एयर सैक्स विल हेल्प अ लॉट।
एयर सैक्स में भी आपका एयर यहाँ पे रहता है, तो इसको ऑक्सीजन सप्लाई की कभी दिक्कत नहीं आती, राइट। वर्क्स एज अ रेस्पिरेशन सप्लीमेंट, राइट आलिया, इट वर्क्स एज अ रेस्पिरेशन सप्लीमेंट, और स्पेशली ये ज्यादा हेल्प करता है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम, व्हेन यू आर डूइंग द माइग्रेशन, वो टाइम पे तो ये ज्यादा हेल्प करता है आपको, बिकॉज माइग्रेशन के टाइम पे यू आर एक्चुअली मूविंग अबव द ओशन, आप ओशन के ऊपर से उड़ के जा रहे होते हो, सो वो टाइम पे तो एयर सैक्स आपकी काफी मदद करते हैं वो टाइम पे। So yes, that is what you have to know. So you'll have a lungs plus air sacs can be seen for the respiration, four-chambered heart. Excretion यहाँ पे होगा किडनी के थ्रू, and the waste is my uric acid. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। Excretion जो आपका यहाँ पे होगा, that will be your uric acid. मैंने आपको पहले बोला था reptiles और birds के लिए it is going to be uric acid. And ये करने के लिए they will be having the kidney. A well-developed kidney will be seen in them. ठीक है। अब एक एडिशनल चीज याद रखना, आपके जो बर्ड्स होते हैं ना, birds do not have a sense of smell. Birds do not have a sense of smell. So olfactory lobe is not developed. Olfactory lobe is not developed. लेकिन इसमें exception है, is not developed. आप कभी नोटिस करना, कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि बर्ड सूंघ सूंघ के खाने के पास जा रहा है, वो दूर से देखता है फिर जाता है खाना उठाने के लिए, चाहे वो आपका कबूतर हो, चाहे आपकी काइट हो, चाहे आपका ऑस्ट्रिच हो। You don't find them smelling something and moving towards the food. You don't find done by the birds, so they don't have a olfactory lobe developed in them. So sense of smell इनका यहाँ पे होगा compromised. So याद रखना, the sense of smell is going to be compromised. यहाँ पे क्या होता है आपका sense of smell is compromised. But मैंने आपको बोला यहाँ पे कि you will have exception in this, और exception आपका यहाँ पे आएगा। मुझे बताओ न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड कौन होता है? कीवी। राइट, कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड, जिसको उनके क्रिकेट टीम को जो हम लोग कीवीज बुलाते हैं। सो कीवी इज अ बर्ड विच डज हैव अ olfactory लोब। इसके पास होता है आपके यहाँ पे olfactory लोब। कीवी बेसिकली आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकता ये, और ये नॉक्टर्नल होता है, और इसके बाद इट हैज अ पुअर विजन, इसको दिखता भी नहीं है, नॉक्टर्नल होता है, उड़ नहीं सकता। सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ स्मेल अर्थ फॉर्म ढूंढने के लिए सॉइल के अंदर। सो याद रखना, कीवी इज अ olfactory लोब, like it, kiwi is going to be having a very developed olfactory lobe, and this bird can actually have a sense of smell. तो इसके पास होता है, बाकी सबके पास नहीं होता, right? बाकी when we talk about the birds will have a sense of flight as well. So birds will show the flight. You will have some examples of exceptions, but they will show the flight. Flight is seen. Few are flightless. Few are going to be your flightless birds. ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, नाउ टेल मी, अगर इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछ लो। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ओवर हियर, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। चलिए, पहले आफ्ताब आप बताइए, फिर अरीशा से हम सवाल लेते हैं, और फिर हम सर कॉर्निफाइड स्किन क्या होता है? क्या? कॉर्निफाइड स्किन। ड्राई स्किन, ड्राई स्किन को हम कहते हैं यहाँ पे कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है, which does not have any kind of secretion happening on them. बताइए अरीशा, बोलिए। Sir, my doubt is clear now. I Quantified had a doubt of air sacs. Air sac. ओके ओके ओके, गॉट इट। क्या हम कभी फ्लाई कर सकते हैं? नहीं। एनीथिंग एल्स, एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चंस? उसके अलावा और कुछ हो गया? दैट्स इट, नो क्वेश्चंस, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। So this is what you find happening in the birds. These are the few things you have to know about the birds. That's what they do, right? एक कुछ चीज याद रखना, they have a hollow bones. Bones are going to be hollow, so that makes them slightly lighter. So they have hollow bones, which makes them, which is going to makes them lighter in weight. Such bones are also called as pneumatic bones. ये जो hollow bones आपकी जो होती है ना, इनके लिए हम एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, and that term is going to be called pneumatic bones.
call them as a pneumatic bones. ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, that is the kind of bone structure you will have them, will find in them, which is going to be helpful for them. ठीक है, उसके साथ इनके पास vocal cords होते हैं, and the vocal cords are called as syrinx. They have this vocal cords. ये जो vocal cords आपको मिलते हैं ना वर्ड्स के, जिससे वो आवाज निकालते हैं, सुबह सुबह जानते हैं ना आप लोग, वर्ड चिल्लाना चालू करते हैं सुबह होते ही. So the vocal cord in the birds is called as my syrinx. हमारे पास होता है larynx, उनके पास होता है syrinx. So that's also one thing you have to know. बाकी fertilization आपका यहाँ पे होगा internal. Fertilization आपका यहाँ पे होगा हमेशा internal. And यहाँ पे कोई exception आपको मिलेगा नहीं. They are all going to be my oviparous in nature. So oviparous in nature. सबके सब एग लेयर्स यहाँ पे होते हैं. चलिए मुझे फटाफट हैंड रेज करके बताइए अपने साइड पे कि कौन से होते हैं मेरे बर्ड्स जो होते हैं मेरे फ्लाइटलेस. कीवी मैं बता चुका हूँ, बाकी बताइए आप लोग. टेल मी द एग्जांपल ऑफ माय फ्लाइटलेस बर्ड. चलिए बोलिए आलिया. ऑस्ट्रिच. बस ऑस्ट्रिच, उसके अलावा और कुछ? ईमू. पेंगुइन. पेंगुइन. वल्चर. वल्चर कब से उड़ना बंद कर दिया? हाँ, वल्चर एक्चुअली फ्लाइट वाले होते हैं. वही तो मैं कह रहा हूँ. Some of अरे them may be. अरे नहीं, unless you I've bring heard them, somewhere. unless you tell me, Arisha, there was a vulture which was ran by a car, then it becomes a flightless vulture. Right? Or else नहीं. ठीक है. ईमू आपका हो गया, पेंगुइन आपका यहाँ पे हो गया, ऑस्ट्रिच आपका हो गया. एनीथिंग एल्स? कैसोवेरी. हाँ राइट. कैसोवेरी काफी एग्रेसिव बर्ड होता है, इससे बेटर रहता है कि आप दूर ही रहो. दैट इज द काइंड ऑफ बर्ड इट इज. इट इज अ वेरी एग्रेसिव बर्ड. अगर आप उसके टेरिटरी में जाते हो, इट कैन एक्चुअली किल अ पर्सन. इट हैज अ बिग toes in this 3 toes they have in their hind limbs, and they can actually like create a big trench in your intestine if they want to. तो काफी वो होते हैं. या इवन रिया. रिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बर्ड इज गोइंग टू बी फ्लाइटलेस बर्ड. ठीक है, हो गया ना, और तो कुछ रहा नहीं. ऑस्ट्रिच, ईमू, पेंगुइन, कैसोवेरी, रिया एंड योर कीवी. These are all my flightless bird which cannot fly. ठीक है, पेंगुइन को तो जरूरत पड़ती है, पेंगुइन रहता है इसी जगह पे कि वो वैसे ही खुश रहता है. बढ़िया. These are all my flightless birds. एक और था आपका डोडो करके था, बट वो एक्सटिंक्ट हो गया काफी साल पहले. Yes. डोडो के साथ पता दिक्कत क्या था? एक तो फ्लाइटलेस था, ऊपर से वो उसे ह्यूमन से डर नहीं लगता था. सो जब ह्यूमंस मॉरिशस गए थे वहां पे सेटल होने के लिए, तो वो वैसे ही घूमता रहता था उनके आसपास, राइट, जस्ट लाइक अ स्ट्रे डॉग. ह्यूमंस ने इसका एडवांटेज लिया. द स्ट्रे डॉग वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मील वहां पे. तो बस फिर so that is something you will find happening in this. So देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. You have a feathers, you have a beak, 4 limbs are turned into beak, wings. Hind limbs are used for walking, swimming, clasping on the branch. Bones are hollow with air cavity. Birds have a well developed digestive system. अच्छा, इसमें एक चीज यहाँ पे याद रख लो. देखो यहाँ पे वो प्री इंग्लैंड की बात की जा रही है, जो आपको जनरली दिखेगा नहीं आपके. ये तो फेदरलेस बर्ड इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट जनरली आपको दिखेगा नहीं नॉर्मल बर्ड के अंदर. नाउ in digestive system, I want to tell you one thing here. When we talk about the digestive system, ना, जब हम बात करते हैं about your digestive system, so याद रखना, they will have 2 parts in the digestive system. एक को हम बोलते हैं वहां पे as a crop, और एक को हम बोलते हैं वहां पे as a gizzard. So these 2 areas you will find in the GI tract. One is called as my crop, one is called as my gizzard. क्रॉप जो होता है ना, क्रॉप के अंदर आप स्टोर करते हो, क्रॉप के अंदर अपना खाना आप यहाँ पे स्टोर करते हो. सो क्रॉप इज द एरिया इन विच द योर फूड इज स्टोर्ड. और जो गिजार्ड आपको बताया ना, यहाँ पे आप क्रश करते हो. हियर यू विल फाइंड द क्रशिंग ऑफ फूड इज बीन डन. क्रशिंग ऑफ फूड इज बीन डन इन द गिजार्ड. आपने बोला कभी नोटिस किया होगा, मदर बर्ड खाना लेके आती है और बेबीज को खिलाती है. तो आपने कभी नोटिस किया होगा, मदर बर्ड जब खाना लेके आती है तो अपना पूरा ऐसा मुंह खोलती है,
baby bird will add their mouth inside the mouth of the mother, and then it will like regurgitate the food she has into the mouth of the baby. तो खाना रो रखते कहाँ पे हैं? खाना दे kept in the crop. So crop में वो खाने को पकड़ के लाते हैं, मतलब रखते हैं, and then they will regurgitate the food they have inside the baby. देखा आपने कभी टीवी पे, आपने देखा होगा ये चीज होते हुए? You can find Yes, this sir. thing happening. Yes, आप sir. टीवी में देखते हो. So बस शुरुआत में really होता है क्या दोनों चीजें? रियल भी ये आप देख सकते हो. बोलो आफ्ताब, क्या कह रहे हो? सर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये शुरुआत में होता है गिजार्ड शुरुआत में और होता है. हाँ हाँ बिल्कुल, आपके ईसोफेगस के नीचे आपको मिलेगा आपका क्रॉप, एंड देन उसके नीचे आपको मिलेगा आपका गिजार्ड. यू कैन सी ओवर हियर. So you have esophagus, then you have a crop, and then you will have a gizzard. Gizzard आपका उसके नीचे आएगा. So crop के अंदर आप स्टोर करते हो इन सब चीजों को. बल्कि अगर आप देखोगे ना, जब आप बेबी बर्ड को फीड करते हो ना, खुद से जब आप फीड कर रहे होते हो तो उनका क्रॉप फुल हो जाता है जब उन्हें फीड कर रहे होते हो. तो you can actually observe that when you actually hand raise a bird. So yes, that is something you have to know. Heart, 4 चमड़े आपके यहाँ पे. Respiration के लिए you have the lungs and the air sacs, so they have plenty of support, and they are my warm-blooded animals. So इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी याद है. Vulture, neophron, ये vulture आपका है Himalayan vulture, and then you have a crow, that's a common crow. Pigeon and Sitacula is your parrot. Basically parrot नहीं कहते, इसे हम parakeet कहते हैं. Parrot is not a right term. You call them as a parakeet. Parrot तो आपने देखा भी नहीं होगा कभी, मतलब टीवी में देखा होगा, but not in real life. And then you have a ostrich, Struthio. ये वाले पैरेट भी आपने कभी देखे नहीं होंगे, because you don't find them in Delhi. उत्तराखंड हिमाचल में आपको दिख जाते हैं. These are your plum-headed parakeet, which you don't find in Delhi, but you find in Uttarakhand and हिमाचल में आपको दिख जाते हैं. Okay, so these are the examples you have to know: Neophron, Columbia, Sitacula, Struthio, and Corvus. चलिए, in A's the forelimbs are modified into what? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा आंसर यहाँ पे? वैसे ही बोल दो. सर ऑप्शन ए. Option A. बहुत बढ़िया. Thanks. Now let's talk about my last class here. That is going to be my mammalia. Mammalia हम यहाँ पे देख लेते हैं. It won't take more amount of time. So you can, आप लोग जानते हो, इस ग्रुप को आप अच्छे से जानते हो, because you all belong to the same group. Let's talk about my mammals. Mammals की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, then you will find one of the thing is going to be they are all my warm-blooded. Mammals will have a, you will be finding presence of mammary glands. You'll have presence of mammary glands. इसलिए तो हम इन्हें mammals बोलते हैं. Presence of external ear. External ear is present, जिसे हम कहते हैं as a pinna. जो आपने देखा होगा कि कई मैमल्स के अंदर जो पिन्ना होता है वो आपका मूवेबल होता है, लाइक इन योर डियर, डॉग, कैट के अंदर मूवेबल होता है. आपका हमारा मूवेबल नहीं होता. सो इन अस वी डोंट हैव अ पिन्ना व्हिच इज गोइंग टू बी मूवेबल. ठीक है. देन यू विल फाइंड दिस इज अ ग्रुप व्हिच विल बी हैविंग presence of glands on the skin. So you'll have number of glands on skin, right? So you can have a sweat gland, pseudophilus gland. Right? You'll have a sweat gland, pseudophilus gland. ये सब आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. So you'll have a sweat glands. You'll have a pseudophilus gland or sebaceous gland. आप याद रखना यहाँ पे, because it is not something commonly seen in all of them. You can have a sebaceous gland. These kind of glands you'll find on the mammalian body. बताइए आफ्ताब, बोलिए. अच्छा आफ्ताब भी है ना, बोलो आफ्ताब, बोलो जल्दी बोलो. सर ये सुबेशियस ग्लैंड क्या होता है? स्वेट ग्लैंड तो पता है. आपके स्किन के अंदर पता है, हम लोग कई बार होता है कि आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, स्पेशली फेस के अंदर. विल फाइंड समटाइम यू विल हैव ऑयली सिक्रेशन कमिंग आउट. यस सर. दैट इज द Yes, sir. सेबेशियस ग्लैंड. वो कहते हैं ना, कई लोग जैसे नॉर्मली टीवी दिखाते हैं कि कुछ लोग की स्किन ऑयली होती है तो उन्हें ये यूज करना चाहिए, वो यूज करना चाहिए, राइट? नेचुरली ऑयली होती है. दैट ऑयली सिक्रेशन इज द सेबेशियस ग्लैंड.
अच्छा आपने ये तो सुना होगा ना, पिंपल होते लोगों को, जैसे ही वन Yes, sir. बॉय और गर्ल हिट्स प्यूबर्टी दे विल होने चालू होते हैं वहां पे। तो पिंपल्स Yes, होते sir. क्यों है? आपका जो सेबेशियस ग्लैंड होता है ना, समझिए आपका सेबेशियस ग्लैंड है और इसमें से आपको ऑयल निकलता है जनरली। अगर इसके ऊपर स्किन की कवरिंग आ गई, अगर इसके ऊपर एक छोटी सी स्किन की कवरिंग अगर आ जाती है, तो ऑयल पुश करता है उसकी स्किन की कवरिंग को। द ऑयल विल पुश दैट स्किन की कवरिंग। तो इससे क्या होगा, ये बल्ज हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपके यहाँ पे बल्ज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव अ पिंपल विल बी फॉर्म्ड। समझ आया? दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद देम। अगर मैं यहाँ पे हार्ट की बात करता हूँ, इफ आई डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द हार्ट, सो हार्ट इज गोइंग टू बी योर फोर चेम्बर्ड हमेशा। बताओ ब्रीदिंग कैसे होती है मैमल्स के अंदर? Through lungs. Sir, lungs के through. लैटरल लाइन यूज नहीं कर रहा। Alright, so you'll have respiration is something which will be happening by your lungs. So you'll have a well-developed nervous system भी आपका में मिल जाएगा. So you'll have respiration happening by your lungs. Excretion की अगर हम यहाँ पे बात करें, Kidney. so you will have a kidney for that, and you should know the waste they're going to release out is going to be your urea. Urea. All is going to be urea. All the time it is going to be urea for all the time, right? You will always have internal fertilization. So internal fertilization without exception, याद रखना हमेशा. Majority of them are going to be viviparous in nature. तो viviparous होंगे आपके majority of them. एक एक्सेप्शन आपके यहाँ पे आ जाता है आपका प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर भी आपका एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा. सो प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर आर द वन which are going to be your oviparous in nature. ये आपका यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा. बेटा रुकना 2 मिनट. सो दिस विल बी द एक्सेप्शन इन द मैमल्स दैट प्लेटिपस आपका जो होता है वो आपको ओविपेरस आपको मिलेगा यहाँ पे देखेंगे. दिस इज द वन व्हिच विल बी लेइंग द एग्स. बाकी जितने भी आपके सारे मैमल्स होते हैं आपके यहाँ पे दिस एंड द यू हैव दिस स्पाइनी एंटीटर, दीज आर द टू मैमल्स व्हिच आर नोन टू रिलीज द एग्स, ले द एग्स. इसके अलावा all the mammals are going to be viviparous in nature. They will give rise to a baby directly. Okay, so fetus का development आपका होता है mother के body के अंदर and they will give birth directly in to the baby all the time. So ये एक चीज आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको याद रखनी है. These are the few things you have to know. Teeth की अगर मैं बात करूं, so they will have a heterodont type of teeth. दैट मीन्स आपके बकल कैविटी में अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं. देखा है आपने कैनाइन, इंसिजर, मोलर्स, प्रीमोलर्स. तो ये आपको मैमल्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है. सो मैमल्स आर नोन टू हैव हेटेरोडोंट टाइप ऑफ टीथ कैन बी सीन इन द मैमल्स. मतलब आपको टीथ अलग अलग टाइप के आपको मिल जाते हैं. दैट इज समथिंग पर्टिकुलरली सीन इन द मैमल्स. ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो दे कैन बी कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस. सब दे आर लाइक कॉमन ट्रेट्स. यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर. These are the few things you should be very much clear with. ये कुछ आपके यहाँ पे traits होते हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पे. You can also remember the trait like your presence of hair on the body, presence of hair on body. That is also one of the trait you will be finding in them. Okay, so this is something you have to know. These are the few things you will be finding in them. So let's have a look. They are found in variety of habitats. पोलर कैप्स में मिलेगा आपको, डेजर्ट में मिलेंगे, माउंटेन्स, एवरीवेयर यू विल फाइंड देम. हर जगह को मैमल्स मिल जाते हैं. डार्क केव में कौन सा मैमल मुझे मिलेगा वहां पे? Lion. Bear. 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 बेर चलो हो सकता है. अरे बैट बाबा, जब मेरे को कोई एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है आप लोग कुछ और ही देते हो. लेकिन सर जो हमें सूझेगा वही तो देंगे ना हम. Bear भी तो वही तो होता है. दिक्कत है. क्या होते हैं? बैर. Bear. हमें इतनी नॉलेज नहीं है ना सर. बैर होते हैं बट हाँ राइट ठीक है. ओके. All right. So you'll have bats also you'll find in the case. So bats are the flying mammals, you know that, and they are going to be also viviparous in nature. ठीक है. Grassland, forest, polar cap, desert, these are all habitat. यहाँ पे आपको polar bear आपको यहाँ पे दिख रहा है घूमता हुआ. You know what? Polar bear कभी penguin को नहीं मिल सकता.
कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता है? Why cannot polar bear meet a penguin? बिकॉज डिफरेंट पोल्स पे प्रेजेंट होते हैं. सही. तो पोलर बेयर कौन से पोल पे होता है, नॉर्थ या साउथ? साउथ पोल पे होता है पूरे पे, आई गेस. नहीं, क्या? आई गेस नॉर्थ नॉर्थ होता पोल है. पे होता है। नॉर्थ नॉर्थ पे मिलेगा, साउथ पे मिलेगा आपका पेंगुइन. पेंगुइन, एंड यू नो यस साउथ व्हाट, पेंगुइन। देयर इज अ बर्ड कॉल्ड एज माय आर्कटिक टर्न. एक बर्ड होता है तुम्हारे यहाँ पे आर्कटिक टर्न करके, और ये बर्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल करता है माइग्रेशन. इमेजिन दैट. यस, मैंने सुना ये है. सिर्फ नॉर्थ इसका पोल से, ज्योग्राफी में पढ़ा था। यस सर. हाँ. और अभी फिलहाल ही न्यूज में आया था कि इनमें से दो चार बर्ड है ना अपना डायरेक्शन खो गए थे और मुंबई में आ गए थे. They got slightly got misdirected while their यस सर. journey because of some kind of सर cyclone or रियली something. हाँ सही में, ऐसे थोड़ी बोलूंगा मैं. एंड दे केम इन मुंबई, मतलब मुंबई के कोस्ट पे ये लोग घूमते हुए दिख रहे थे. तो सब लोग लाइक जो जानते इस चीज को, देवर ऑल वहां पे इकट्ठा हो गए थे आर्कटिक टर्न देखने के लिए, बिकॉज यू डोंट फाइंड एम इंडिया उनके माइग्रेटरी रूट पे नहीं दिखता. सो ये तो रेयर कंडीशन होगी सर. रेयर कंडीशन थी बिल्कुल. सो सब लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें देखने के लिए. और बर्ड भी छोटा सा होता है, इट्स लाइक दिस बिग. द बर्ड इज एज बिग यस एज अ सर. क्रो. टेलीस्कोप या भी नहीं लगा के होता. देखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इतना छोटा बर्ड इतना लंबा माइग्रेशन कर रहा होता है. सो दैट इज समथिंग स्टोरेज एक्सेप्शनल. ज्यादा होती है क्या सर उसमें? क्या ज्यादा होता है? नहीं सर, वैसे बहुत लंबा टाइम लेता है, छोटा बर्ड है, लगातार उड़ता रहता है ना वैसे, हाँ माइग्रेशन। लगातार उड़ता रहता है. बीच बीच में इसके कुछ पिट स्टॉप्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम इट जस्ट कीप्स ऑन फ्लाइंग. सो या इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी दोस बर्ड्स. सर ठीक है. ये स्लाइड आप हाँ पीछे कर हाँ. सकते हैं सर? क्या क्या? स्लाइड पीछे कर सकते हैं सर आप? जो रिटर्न लिखा था बस लास्ट की लाइन में मैं समझ नहीं पाया था, और पीछे टर्न लिखा हुआ है यहाँ पे. लास्ट लास्ट, हाँ हाँ हाँ. बस ये जो, अच्छा बस बस ठीक है, आप आगे बढ़ा सकते हैं, समझ आ गई लाइन. So that is what you find happening in this, and these are my mammals, and you can see all the things over there: heterodont teeth, hairs on the body, mammary glands, yeah, four-chambered heart, lungs for respiration. All are my warm-blooded animals. हम लोग हमारा temperature regulate कर सकते हैं खुद से. And sexes are separate, fertilization internal. All are viviparous, exception your platypus जो आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, and echinida, that's your spiny anteater. ये दो बनते हैं आपके यहाँ पे ओविपेरस नेचर के अंदर, बाकी सब आपके होंगे यहाँ पे आपके विविपेरस नेचर में. Few examples: your kangaroo, macropus, camelus camel, pteropus is your flying fox. Flying fox मतलब आपका bat, not literally a fox which is flying. Ratus is a rat, ये आपका labrador. And then you have an elephant over there. So the other example you get to see. This is where your chapter gets completed एक तरीके से, but still the chapter will only get completed when you start solving questions. क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी होगा. एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दो, देन मैं आपको लाइक कैन लेट यू गो, बट लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. ये जाने दो यहाँ पे. यू टेल मी द आंसर फॉर दिस. टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस. मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे आपको मैच करना है, कौन कहाँ पे मैच हो जाएगा वो आपको यहाँ पे देखना है, और हो जाएगा, आसान है, कर लो. एंड रेज योर हैंड. सर डन. हाँ तो हैंड रेज सर करना, डन। यस सर. हैंड रेज करना, जैसा भी हो जाता है हैंड रेज करना सब लोग. बताओ पूर्वा, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। क्या लग रहा है आपको आलिया? ऑप्शन बी। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. Gregarious polyphagous pest is your locust. बड़ा एक पेस्ट ही होता है, ये डैमेज करता है क्रॉप्स को, राइट? Then your adult with the radial sweaty and larva with the bilateral, that's your Asterius, that's your starfish. Book lungs आप जानते हो, scorpions आपको मिलेंगे, उसके साथ you will find them in the spider as well. Bioluminescence is your Tinoplana. चलो, very good. Match the following organism with respect to characteristics. बताइए, मैच करिए इसे. हैंड रेस करो, करने के बाद हैंड रेस कर देना बस. लव हो गया, बताओ क्या होगा इसका आंसर? लव. अरे लव चला गया.
बाकी लोग भी करना चालू करिए, चलिए बोलिए। अरीशा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर अरीशा जस्ट अ सेकंड। हो गया, चलो कर लो कर लो। सर डन। बोलो आफ्ताब। सर ऑप्शन सी। एलेक्स बताओ, कैट। अगर आपको हमारी आवाज आ रही है। एलेक्स आप भी बताइए, क्या लग रहा है? आलिया क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या है आपके यहाँ पे। ऑप्शन सी, ऑप्शन से आपको यहाँ पे कह रहा है पिला हैज टू गो विद योर रेडुला। सो पिला इज योर मोलस्कन एंड इट विल हैव द माउथ पार्ट, दैट्स अ रेडुला, राइट। बॉम्बेक्स अगर आपको दैट्स अ सिल्क फॉर्म, आपका ये होता है कि यहाँ पे इंसेक्ट है यहाँ पे। सो दिस इज इंसेक्ट, बॉम्बेक्स इज इंसेक्ट, Yes. सो दिस विल हैव द मार्फिल ट्यूब्यूल यहाँ पे। Pleurobrancia will be having the complex because it's your flora, and Taenia is going to be your having the फ्लेम flame सेल्स। यहाँ पे का टेक्निक के साथ। सो यस बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो बेटा बाकी लड़की भी हैंडल करेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड, इनमें से कौन सा एक ट्रेट है जो बर्ड्स एंड मैमल शेयर नहीं करते? Which of this trait is not shared by birds and mammals? चलो चलो बेटा, बाकी बाकी सब लोग कहाँ पे? एलेक्स एंड लव, लवकुश, हर्षित, दीपांकर, आफ्ताब। बताइए लवकुश क्या होगा इसका सर सी। आंसर? लव क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। चलो नहीं बोलिए, अलीशा बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर, क्योंकि यस सर। मैमल्स और बर्ड्स डू नॉट शेयर दिस विविपेरिटी। बर्ड्स आपके होते हैं ओविपेरस और मैमल्स आपके होते हैं यहाँ पे विविपेरस। सो यस यू विल फाइंड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज शेयर्ड बाय देम। Ossified मतलब the bones are made of what? Like bones are basically made up of your like bony endoskeleton. Ossified मतलब bony endoskeleton आपको यहाँ पे मिल जाए, which is a true thing. आपके दोनों के अंदर बर्ड्स और मैमल्स के अंदर will have a bony endoskeleton, so that's true. But viviparity आपको दोनों में कॉमन आपको यहाँ पे नहीं मिलती। So yes, option A is not going to be a common trait. That's a correct answer. Which of the following animal is not viviparous? इनमें से कौन सा एनिमल आपके सामने यहाँ पे जो विविपेरस आपका कभी नहीं हो सकता? हैंड रेज करिए, चलिए बताइए बेटा। श्रेया, प्रणवी आप भी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? हिमांशी, रवीना। सर डन। अरे रुक सर जाओगे आप, बताइए। अलीशा क्या होगा इसका आंसर? सर प्लेटिपस। प्लैटिपस इज द करेक्ट आंसर अलीशा, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे। प्लैटिपस इज द वन विच इज नॉट विविपेरस। ये आपका ओविपेरस होता है, दिस गोइंग टू ले द एग्स। सो यस दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका एज अ करेक्ट आंसर। सिंपल था ये, ओके। Select the taxon mentioned that represent both marine and freshwater species. इनमें से कौन सा आपका ग्रुप है जो मराइन में भी आपको मिलता है और फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाता है? ये भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा आपसे। बताइए बेटा। हर्षित, आयशा, हिमांशी, पूर्वा, रवीना, यशवी, श्रेया, व्हाट डू यू थिंक? Which group will be having both freshwater and marine species? बोलिए ऋषा क्या होगा इससे यहाँ पे आंसर? निडेरिया। राइट, निडिरिया इज द करेक्ट आंसर दिस, बिकॉज़ निडिरियंस के अंदर यू विल हैव योर हाइड्रा, आपको मिल जाता है यहाँ पे। हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर वन, एंड Yes, मराइन के sir. अंदर यू हैव लाइक कोरल्स, you have other groups over there. So that is why option D यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर इन दिस। अच्छा, एनर्जी है सॉल्व करने की क्वेश्चन या बाद में करें? बताओ। क्या सर? है कर सर। लेते हैं अभी। यस सर है कि। यस का है, सिर्फ दो लोगों ने यस बोला बेटा। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन इन दैट केस वी कैन हैव अ, आई कैन लेट यू गो। लेकिन मैं क्वेश्चन बाद में आप सॉल्व कर लेना अपने साइड से। कल आपके टेस्ट के पहले आई वुड रिकमेंड कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ग्रिप बना लो, सो दैट थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? इनमें से कौन सा आपके करेक्टली मैच है विद रिस्पेक्ट टू द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के साथ? आपके हैंड रेस देख के लग रहा है यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट अरीशा, आफ्ताब और दो तीन लोग। आके आया करो कुछ क्लास के अंदर, हैव समथिंग बिटवीन द टू क्लासेस।
बताइए सलोनी, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। सी लग रहा है आपको यहाँ पे। मैं आपको बताऊं एक चीज यहाँ पे सलोनी, सिल्वर फिश होता है ना, वो एक्चुअली में आपका इंसेक्ट होता है। सिल्वर फिश इज एक्चुअली इंसेक्ट। ये वो नहीं हम कहते बुक वॉर्म नहीं कहते हम लोग की किताबों में छोटा सा सिल्वर कलर का कीड़ा आपको दिख जाता है कई बार पुरानी Yes. किताबों के अंदर। दैट इज अ सिल्वर फिश, दैट इज अ इंसेक्ट। Oh. तो आप समझो ये इंसेक्ट हो गया और ये दोनों फिश हो गए, तो ये तो आपका हो नहीं पाएगा यहाँ पे। सो सी तो आपका बन नहीं पाएगा। आपको लेकिन हिंट मिल गई है तो भी आप बता सकते हो मुझे यहाँ पे। बताओ लव, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। तो आपको ऑप्शन ए लग रहा है। आलिया, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बन जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसे फ्लाई एंड योर सिल्वर फिश, दीज आर ऑल कमिंग अंडर द सिंगल ग्रुप ऑफ माई इंसेक्टा। सब मेरे यहाँ पर है इंसेक्टा के अंदर, सो दैट्स अ ट्रू वन। ये आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। Let's do one thing. I will share this. You will have this question. So please solve these questions. इनको solve करो आराम से बैठ के। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर I will let you go. One more question. Which of the following categories अभी of कर लेते हैं सर animals? सारे क्वेश्चन। आफ्ताब, जब मैं बोल रहा हूँ ना तब मत बोला करो। Just wait for me to complete and then say. ठीक है? Which of the following categories of animal is correctly described with no single exception in it? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे ग्रुप है जिसके अंदर आपको कोई भी सिंगल एक्सेप्शन आपका पे नहीं मिलेगा? बोलो। Which of the following categories of animal is correctly described with a no single exception in it? तो इन्होंने कर दिया। बताओ सलोनी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे तो। लग रहा है क्या होता है बेटा? कॉन्फिडेंस से बोलो कि सी है, डी है, ए है, क्या है, जो भी है बोलो। सर ऑप्शन सी। सर मैं अरे नहीं, हर एक को मौका मिलेगा। अरीशा बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉरी बी। आलिया, सर ऑप्शन बी। हिमांशी, सर ऑप्शन डी। दिल्ली वाला डी या बैटमैन वाला बी? सर डी, दिल्ली। पूर्वा, आपका हो गया ना? यस सर। आफ्ताब, सर ऑप्शन बी, बी फॉर बैटमैन। अच्छा। एंड लव? सर ऑप्शन बी। देखते चलो। So all reptiles possess scales, have a three-chambered heart, and are cold-blooded animals. इसमें एक्सेप्शन आपका आ जाता है क्रोकोडाइल, तो ये तो आपका सही नहीं है। So that's not आंसर, क्योंकि क्रोकोडाइल आपका इसके अंदर आएगा। एक्सेप्शन हमें चाहिए ही नहीं। All sponges are marine and have a collared shell. सारी स्पॉन्जेस मराइन नहीं होती। याद करो, एक स्पॉन्जिला नाम का आपका स्पॉन्जेस था जो आपका फ्रेश वाटर में आपको मिलता था। यस तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे आपका नहीं आएगा। दिस इज नॉट आंसर ओवर हियर। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये भी आपका नहीं बनेगा यहाँ पे, बिकॉज यू नो हमारा प्लेटिपस होता है जो आपका होता है विविपेरस। अब क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑल बोनीफिश हैव 4 pairs of gills and are and operculum on each side. So yes, ये आपको होने का एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, so चलो यहाँ तक ही हम रखते हैं यहाँ पे। आई वुड रिकमेंड टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड एंड एक बार फिर हम क्वेश्चन फिर और सॉल्विंग हम कर लेंगे हमारे एंड से, सो वी कैन हैव अ मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। असाइनमेंट अगर आपको मिलेगा तो कर देना सॉल्व, मंडे तक शेयर कर देना। और जिन्होंने पहला असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया एनिमल किंगडम का, वो भी करिए अभी। डोंट लाइक या बी फ्रॉम योर साइड एंड इटसेल्फ यू शुड स्टार्ट डूइंग द असाइनमेंट एंड शेयरिंग दैट विद मी। वो मत करो कि मुझे फिर आपको पुश करना पड़ेगा असाइनमेंट करो। नीट के बच्चों को ऐसा करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग फ्रॉम योर साइड। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो अगर कोई सवाल है तो आप सवाल अपने यहाँ पे पूछ सकते हो। इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन आपका लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। विल कैच यू अगेन फ्यू डेज डाउन द लाइन, 1-2 दिन के बाद। बताइए, बोलिए क्या करके सवाल अपना जिनका सवाल है। बोलिए अपूर्वा, क्या सवाल है आपका? बोलिए।